गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। वडोदरा में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी कॉरपोरेशन ने बारिश से पहले तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए थे। दावा था कि इस बार शहर के निचले इलाकों में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हकीकत एक बार फिर उन दावों की पोल खोल रही है। खासकर उंडेरा गांव, रिफाइनरी टाउनशिप और बाजवा जैसे इलाकों में। તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ વિસ્તાર ઉંડેરા જે નવું કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ છે 7 ગામો છે, એક ગામમાંથી આ ઉંડેરા ગામ છે। આ ઉંડેરા ગામમાં હાલ વરસાદની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે। પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરવાની હોય કોર્પોરેશનના અનગઢ વહીવટના કારણે આજ સુધી ઉંડેરામાં કોઈ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી થઈ રહી નથી। તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઉંડેરા ગ્રામ પંચાયત અને ગુજરાત રિફાઇનરી દ્વારા નીચાણ વિસ્તારમાં એટલે કે ઉંડેરા આવાસ પરામાં તેમજ રિફાઇનરી ટાઉનશીપ આઈટીસી ટાઉનશીપમાં અને પાછળ બાજવા વિસ્તારમાં પાણી ના ભરાય એ માટે લાખો રૂપિયાના ખર્ચો કરી રિફાઇનરી અને ઉંડેરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એક પંપનું આયોજન કરવાનું। આ પંપ છેલ્લા કેટલા મહિનાથી બંધ છે, એનું મોટર કાઢી ગયા છે કોર્પોરેશન દ્વારા। કોર્પોરેશનના લોકો આજ સુધી રિપેર કરવામાં નથી અને તમે જો તળાવની પાણીની સપાટી તળાવ ભરવામાં હવે 2 ફૂટ બાકી હોય અને નીચાણ વિસ્તારમાં પાણી ભરવાની તૈયારી છે, ત્યારે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ઘેરી નીંદમાં ઊંઘતા હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે। જ્યારે નીચાણ વિસ્તારમાં પાણી ભરાશે અને લોકોના ઘર વકરી બગડશે ત્યારે આ લોકો જાગશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। આ પંપ 2 મૂકેલા છે, કોર્પોરેશને પણ એક પંપ મૂક્યો છે, પણ અત્યારે અમે જોયું કે એમની લોક સીટ છે જેમાં છેલ્લા 2 દિવસથી તો પંપ ચાલુ કરવામાં જ આવ્યો નથી। નાનો પંપ ચાલુ કરવામાં નથી, મોટો પંપ તો કેટલા મહિનાઓથી બંધ છે। આપના માધ્યમથી અમે આ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને અને સત્તાધીશના જે ચૂંટાયેલા પાકને અમે કહેવા માગીએ છીએ કે તમારી આ બેદરકારીને કારણે નીચાણ વિસ્તારમાં પાણી ભરાશે, તેની જવાબદારી તમારી રહેશે। गुजरात के वडोदरा में पानी की समस्या पर हमेशा से ही हाहाकार मचा रहा है, जिस पर कॉरपोरेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी रवैये से नाराज होकर लोगों ने कॉरपोरेशन में जमकर प्रदर्शन किया। वडोदरा के आजवा रोड स्थित कान्हा सिटी में पिछले कई समय से पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। रहवासियों ने कई बार शिकायतें की, आवेदन दिए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिरकार तंग आकर कान्हा सिटी के रहवासियों ने कॉरपोरेशन पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। रहवासियों का आरोप है कि कई बार कॉरपोरेशन के अधिकारी केवल सर्वे कर फोटो खींचकर चले जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं होता। કાના સિટી આજવા રોડથી આવીએ છીએ। કેટલા 1 વર્ષથી અમને પાણીનો પ્રોબ્લેમ છે, તો અત્યારે અમે અહીંયા કમિશનરને મળવા આવ્યા હતા પણ મળ્યા નથી, તો અત્યારે અમને કમાટીબાગ બોલાયા છે। છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે કાના સિટીમાં રહીએ છીએ અને છેલ્લા 6 મહિનાથી વધારે પાણીનો પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે। વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ અમને પાણીનો ફોર્સ વધારી આપવામાં આવતો નથી। પાણીના ફોર્સ માટે વીએમસીમાંથી ઘણીવાર ફોટા લેવા આવી ગયા, ઘણીવાર એમના માણસો આવી ગયા, છતાં પણ કોઈ સોલ્યુશન નથી મળતું। દર વખત આવીને વિડીયો લઈને જતા રહે છે। બરાબર અમને કોઈ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળ્યું નથી હજી અને અમે ઓલરેડી ધાર્મિકભાઈ સાહેબને મળ્યા થોડા વખત પહેલાં, છતાં પણ એમને આવીને એમને મળવાથી બી કંઈ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આવ્યું નહીં। એટલે આજે અમે ફોલોઅપ માટે ફરીથી આવ્યા છે અને ફરીથી અમને વાત કરવા અહીંયા અમને કોઈ મળ્યું નથી અત્યારે। એટલે બધેકા સાહેબ જોડે અમે ફોન પર વાત કરી, બધો જે પ્રોબ્લેમ હું અત્યારે જે જણાવી રહ્યો છું એ જ એમને જણાવ્યું મોબાઈલ ઉપર પણ। એટલે એમને કહ્યું કે અમે કંઈ વિચારીશું આમાં। મેં કહું અમારે બધાને વાત કરવી છે કારણ કે સોસાયટીના બધા મેમ્બર આટલો સમય બગાડીને આવ્યા છે તો અમારે મળવું તો પડશે। તો છેવટે એમને હજી અમને માહિતી આપી કે તમે કમાટીબાગ આવી જાઓ પાણીની ટાંકી પાસે, અમે ત્યાં તમને મળીશું। અને અમે અત્યારે કમાટીબાગ જઈ રહ્યા છે આખી સોસાયટી અને એમને મળીશું કે જ્યારે 1200 રૂપિયા ટેક્સ માંગવામાં આવે છે ત્યારે પાણી ના મળે તો પછી એનો કોઈ મતલબ નથી, પૈસા બી ના ભરીએ ને, પછી તો ટેક્સ શા માટે ભરીએ? તો અમારો આ પ્રશ્નનો રજૂઆત કરવા માટે અમે અહીંયા આવ્યા। गुजरात के वडोदरा में वेबग्योर स्कूल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। वडोदरा में वेबग्योर स्कूल पर नियमों से अधिक फीस वसूलने के आरोप लगे हैं।
इस मामले को लेकर आज फी नियमन समिति वडोदरा जोन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। समिति के अनुसार पिछले 4 महीनों से विप ग्योर स्कूल द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक फीस वसूली की जा रही थी। इसको लेकर कई अभिभावकों ने फी नियमन समिति में शिकायत दर्ज कराई थी। समिति ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। जैसा आपको पता है, कल हमने विप ग्योर स्कूल को एक नोटिस दिया हुआ है। जो स्कूल ने 4 टाइप के वायोलेशन किए हुए हैं ऑलरेडी, उसके अगेंस्ट में हमने ऑर्डर किया हुआ है और करीबन टोटल 10 लाख का पेनल्टी का नोटिस इशू किया हुआ है। जो चार टाइप के वायोलेशन है, उसमें पहला वह है कि स्कूल ने FRC के एक्ट के हिसाब से नोटिस बोर्ड पे नोटिस रखना पड़ता है। FRC का ऑर्डर, वो ऑर्डर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है नोटिस बोर्ड पे, उसके लिए FRC ने 1 लाख रुपए का दंड किया हुआ है। नंबर 2, एडवांस फी स्कूल ने 2 हफ्ते की 2 क्वार्टर की एडवांस में ली हुई है। FRC एक्ट के तहत 1 क्वार्टर की फीस वो ले सकते हैं, लेकिन 2 क्वार्टर की ऑलरेडी उन्होंने ले ली है। उसके लिए FRC ने दूसरा 1 लाख रुपए का दंड किया हुआ है। नंबर 3, जो कंप्लेन आई थी पेरेंट्स एसोसिएशन से, उसके तहत FRC और DO ने यहाँ से एक समिति भेजी थी इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन ऑफिसर को स्कूल ने कोऑपरेट नहीं किया था और ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किए थे। उसकी वजह से FRC ने 3 लाख रुपए का दंड किया हुआ है। नंबर 4, सेम प्रीमाइसिस में वो लोग प्री प्राइमरी स्कूल भी चला रहे हैं, तो FRC एक्ट के हिसाब से उनको 2024-25 से 26-27 का फीस का ऑर्डर लेना पड़ता है, परमिशंस का। वो परमिशन स्कूल ने नहीं ली है, उसकी वजह से दूसरा 5 लाख का दंड किया हुआ है। ऐसा देखें तो ओवरऑल 10 लाख का स्कूल को पेनल्टी किया हुआ है और ये स्कूल को 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनने का अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है और सेटिस्फैक्टरी आंसर FRC को नहीं मिला है। इसकी वजह से FRC ने 10 लाख का दंड किया हुआ है। ये लास्ट 3-4 महीने से इश्यू चल रहा है और हमने रेगुलर बेस पे स्कूल को नोटिस दिया हुआ है। 2-3 बार अपॉर्चुनिटी भी दी सुनने की, बट हर एक बार कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर या डॉक्यूमेंटेशन हमको नहीं मिले हैं और लास्ट में हमने ये इश्यू ऑर्डर उनको 3-4 बार सुनने के बाद ही दिया हुआ है। अभी इतना बड़ा इश्यू दूसरी स्कूल में नहीं है, थोड़ी बहुत स्कूल है, उनका हम रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में हियरिंग चल रहा है और जैसे जैसे आएगा उसका एक्शन लेंगे हम। पेरेंट्स को एक ही मैसेज है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात FRC कमेटी उनके हक के लिए कटिबद्ध है। जो सही है उनके लिए सही काम होगा और जो गलत है उनके लिए अगेंस्ट में काम होगा। मैं कृणाल बम्बट, FRC कमेटी मेंबर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बड़ोदरा जोन, और हमारे कमेटी मेंबर साथ में है जयेश भाई पटेल एंड RD राजपूत साहब, DN राजपूत साहब। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91-87348 72606 or 91-9879 572-606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा।
ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices.
SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वडोदरा स्मार्ट सिटी कहलाने वाले शहर की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। वार्ड नंबर 13 के खाड़ियापोल क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब खाड़ियापोल इलाके की पेयजल पाइपलाइन टूट चुकी है। स्थानीय लोगों को मजबूरी में टैंकर से पानी भरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी है और नगर निगम की तरफ से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। વોર્ડ નંબર 13માં ખાડિયાપોલ નંબર 1, 2 અને પુનિતપોર ઓછા પ્રેશરથી પાણી આવતું હતું, ગંદુ પાણી આવતું હતું, એટલે નવું એક કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું। બજેટમાં કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું। લોકોના પરસેવાના વેરાના પૈસાથી જે કામ ચાલતું હતું એ ઇજારદારની ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં એવું હતું, કામ કરતી વખત કોઈ બી કનેક્શન પાણીનું હોય, ગટરનું હોય કે ગેસનું હોય, તૂટી જાય તો એને રિપેર એને પોતે કરવાનું હોય। તો પણ તમે જોઈ શકો વિસ્તારના નાગરિકોને કોની પાસેથી 5,000, કોની પાસે 6,000, કોની પાસેથી 7,000 લઈને કનેક્શનના પૈસા લેવામાં આવ્યા છે। એટલે ખરેખર એને એની જ જવાબદારી હોય તો પણ લોકોને હેરાન કરી રહ્યા છે। અને જે કામ જેટલું કામ પૂર્ણ થયું છે, લોકોના કનેક્શનો જેટલા થઈ ગયા છે, એ લોકોને નળમાંથી પાણી આવે એના લીધે એમની જવાબદારી હોય। જે કેપ મારવાની હોય, કેપ એ લોકોએ ખુલ્લી રાખી એટલે સવારે 8-8 દિવસથી પાણી ગટરમાં જાય છે, લોકોને નળમાંથી પાણી મળતું નથી અને લોકોને ટેન્કરમાં ખાડા ટેકરામાંથી સિનિયર સિટીઝનોને પાણી ભરવું પડે છે। એટલે આવી બેદરકારીના લીધે આવા ઇજારદારને નોટિસ આપવામાં આવે। એને ખરેખર કાયદેસર જે પણ અધિકારી હોય એની ભૂલના લીધે આવી લોકોને મુશ્કેલી ના પડે ને કોઈ પણ અમારા વિસ્તારના નાગરિક પાસેથી એક પણ રૂપિયો ના લેવામાં આવે એવી અમે કમિશનરશ્રીને આજે રજૂઆત કરી। वडोदरा गैस ऑफिस की तीसरी मंजिल से एसी गैस लीक होने के बाद अफरा तफरी मच गई। वडोदरा शहर के डांडिया बाजार क्षेत्र में स्थित वडोदरा गैस लिमिटेड की ऑफिस में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तीसरी मंजिल पर स्थित अकाउंट विभाग के एयर कंडीशनर से अचानक गैस लीक होने लगी। गैस की तेज दुर्गंध फैलने के बाद एहतियातन के तौर पर ऑफिस की सभी लाइट्स तुरंत बंद कर दी गई और कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। वडोदरा गैस लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर संचालित एक संयुक्त उपक्रम है।
घटना के बाद कर्मचारियों ने जल्द से जल्द पूरी इमारत खाली कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि गैस लीक की सूचना मिलने के करीब 10 मिनट बाद तक भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची थी। વડોદરા ગેસ લિમિટેડની દાંડિયાબજાર ગેસ ઓફિસ છે. આ ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. થર્ડ ફ્લોર પર અત્યારે આપણે હાલમાં ઊભા છે. પાછળ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ગેસની જે કોપરની લાઈન આવતી હોય જેમાંથી કુલિંગ ગેસ આવતો હોય છે એસી ઠંડુ કરવા માટે, તો એ કુલિંગ ગેસની પાઇપમાં થોડો ધડાકા જેવું થયું અને ત્યાંથી કુલિંગનો ગેસ વેન્ટ થવા લાગ્યો. જેવો વેન્ટ થવા લાગ્યો એટલે અમે અહીંયા જે 5 કર્મચારીઓ જે હતા અને એક કસ્ટમર હતો એ અમે લોકો નીચે બારી વાળા ખુલ્લા કરી દીધા છે. કોઈ ભેગા મારા ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, તમારા ઘરમાં બી થઈ શકે છે, મારા ઘરમાં બી થઈ શકે છે, ઓફિસમાં બી થઈ શકે છે. गुजराती फिल्म जो कभी सिर्फ लोकल थिएटरों तक ही सीमित था, आज ऑस्कर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है. गुजराती फिल्म्स की कहानियां अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पहचान भी बन रही है. दिन पर दिन गुजराती फिल्म्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है और इसी कड़ी में अब एक और नई फिल्म जुड़ने जा रही है जिसका नाम है जलसो. 13 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और आज वडोदरा शहर में इस फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद है. तो चलिए उनसे जानते हैं इस फिल्म के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से. वडोदरा के जिंजर होटल में गुजराती फिल्म जलसो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस खास मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट पूजा जोशी, हेमांग दवे, भाविन भानुशाली और धर्मेश व्यास मौजूद रहे. सभी कलाकारों ने मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म जलसो से जुड़ी दिलचस्प बातें साझा की और बताया कि यह फिल्म किस तरह से गुजराती संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और मनोरंजन का अद्भुत संगम है. भाविन भानुशाली हमारे साथ मौजूद है जिनकी ये डेब्यू फिल्म है. तो चलिए उनसे जानते हैं. सबसे पहले ये बताइए, जैसे कि आपका डेब्यू फिल्म है, कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म्स में काम करने का? हिंदी फिल्म्स तो करी है मैंने. पिछले 12 साल से मैं एक्टिंग के काम में हूँ, लेकिन ये मेरी पहली गुजराती फिल्म है जो रिलीज होने जा रही है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, उनको बहुत उम्मीद है इस फिल्म से, मुझे बहुत उम्मीद है. बहुत मेहनत और लगन से इसको शूट किया है. मेरा तो पूरा करियर इस फिल्म पे डिपेंड करता है. तो और सबने देखी. कल भी एक स्क्रीनिंग थी कुछ खास लोगों के लिए, लोगों ने अप्रिशिएट की है. एक्टर्स को बहुत पसंद आई है. डायरेक्टर सर ने अमेजिंग काम किया है. किस रोल में आप नजर आएंगे इस फिल्म में? इस रोल में जो मैं हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है अर्पण, वो जैसा मैं लाइफ में मैं जैसा हूँ उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है. तो आपको बहुत ही एक नेचुरल वे मेरा देखने मिलेगा इस फिल्म में. हमारी बहुत बढ़िया फिल्म आ रही है जलसो, जो 13 जून को रिलीज होने वाली है. मेरे कैरेक्टर की बात करें तो एक बहुत ही चुलबुली और बबली लड़की दिखाई है. ऐसा कैरेक्टर मैंने शायद पहली बार प्ले किया है, बिकॉज बहुत ही बोल्ड वर्सेटाइल कैरेक्टर एक जगह पे दिखाया गया है और दूसरी तरफ एकदम संस्कारी घर की अच्छी सी लड़की वैसा टाइप का कैरेक्टर. तो पूरा ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा. पहले वो अब्रॉड रहती है, अब्रॉड से फिर वो जब इंडिया आती है अपने माँ बाप के घर पे, तो वो जो दो कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस है वो आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से वो गुजरती है. उसकी शादी होने वाली होती है, एक लड़के के प्यार में पड़ती है, शादी की सारी तैयारियां चल रही होती है और एक मुसीबत आ जाती है. तो वो सब मिलके जब पूरी फैमिली साथ में आती है उसको राइट प्रूव करने के लिए, वो सब आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा. फुल फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इतने सारे कलाकार हैं फिल्म में, बड़े बड़े कलाकार हैं, तो वो सब देखने में बहुत मजा आएगा. बहुत बढ़िया गाने भी हैं इस फिल्म में. करीबन 4 से 5 गाने हमने शूट किए हैं. एक गरबा सीक्वेंस भी है. सो इट्स अ फुल फैमिली एंटरटेनर फिल्म. खास बात यह है कि इस फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी समेत कई वरिष्ठ कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन किया है राजीव एस रोया ने और इसे प्रोड्यूस किया है साहबराज नाहटा, सीमा नाता और लक्ष्य नाहटा ने. तो आप इस फिल्म में किस रोल में नजर आने वाले हैं? जी, मैं इस रोल में पूजा जोशी जो है उसके मामा का रोल कर रहा हूँ. और मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा कॉमेडी है. तो मैं थोड़ा कॉमेडी और एक सस्पेंस भी है जो मैं अभी नहीं खोल सकता. वो फिल्म देखने पे ही खुलेगा ऑडियंस के लिए. तो वो देखने के लिए आपको जलसो देखनी पड़ेगी. आपने जब ये फिल्म साइन करी तो किस सोच के साथ करी? मतलब ऐसा क्या इंटरेस्टिंग आपको नजर आया? सबसे पहले तो ये फिल्म की जो स्टार कास्ट है, अरुणा ईरानी जी है, हितेन तेजवानी है, धर्मेश सर है. मतलब
हम लोग जो एक्टर्स हैं वो उनके साथ काम करने के लिए मरते हैं कि अगर धर्मेश सर है तो उनके साथ काम करना ही पड़ेगा, तो हमारे ना बोलने के लिए कोई गुंजाइश थी नहीं। ऑफ कोर्स बजट अच्छा था तो ना बोलने का कोई मौका ही नहीं था, और कैरेक्टर बहुत अच्छा था एक्चुअली। ये मेरा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का जो वेटेज है ना फिल्म में वो काफ़ी अच्छा है, तो मेरी वजह से फिल्म बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, तो वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ फादर्स रोल, हीरोइंस फादर, एंड एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही जॉली नेचर का आदमी है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ प्रॉब्लम हुई है तो पूरी फैमिली के साथ अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। एक अलग रोल कर रहा हूँ इस बार मैं, वैसे 40 साल में बहुत अलग अलग रोल किए मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव, इमोशनल, ड्रामा, पर ये रोल कुछ अलग है एंड करने में भी बहुत मजा आया मुझे। तो ये फिल्म हमारे दर्शकों को क्यों देखनी चाहिए, क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए? जी बहुत सालों से मैं देखते आया हूँ कि पहले क्या था कि हमारे भारतीय संस्कृति में जॉइंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट था, ये पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, चाहे घर में जितने भी मेंबर्स हो। वो अभी धीरे धीरे न्यूक्लियर होने लगे कि बेटा बड़ा हो गया, अलग रहने चला गया, एक अलग रहने चला गया, माँ बाप अकेले रह गए। नहीं, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ जॉइंट फैमिली। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जॉइंट फैमिली जब से खत्म होने लगी है, डिवोर्स के केसेस जो बढ़ने लगे ना बिकॉज ऑफ दैट। जॉइंट फैमिली में रहते थे ना तो अगर छोटी मोटी अगर बातें होती थी हस्बैंड वाइफ के बीच में तो शर्म की वजह से ढक जाते थे कि नहीं घर में सब है, वो अब रहा ही नहीं, इसलिए डिवोर्स के केस इसलिए बढ़ रहा है। तो इस फिल्म की स्टारकास्ट की बातें सुनकर ये तो साफ हो गया कि इस फिल्म में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी इस फिल्म के सभी किरदारों की कहानियों को अनुभव करना चाहते हैं तो 13 जून को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने जरूर जाएं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।